آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں۔ آج ہے 11 نومبر 2025 اور یہ رہیں آج کی سرخیاں۔ ویسٹ بینک میں پھر بھڑکا غصہ، اسرائیلی سانسد نے جوتے پہنے ابراہیمی مسجد میں کی گھسپیٹ، مسجد میں ہے ابراہیم علیہ السلام کی قبر۔ اسرائیل کی پارلیمنٹ میں نفرت کا تماشا، بین گویر نے فلسطینی پھانسی بل پر بانٹی مٹھائیاں۔ ٹرمپ کا غزہ پلان ٹوٹا، 2 حصوں میں بٹنے جا رہا ہے غزہ۔ یمن کے ہوتھیز کا اعلان، نہیں کریں گے اسرائیل پر حملے۔ نئے اٹیک کے آثار کے بیچ ایران کی بڑی وارننگ، کہا نئی جنگ ہوئی تو پہلے سے زیادہ مچائیں گے تباہی۔ سیریا کے صدر احمد الشرا نے نیتن یاہو کے ارمانوں کو لگایا پلیتا، شرا بولے اسرائیل سے نہیں سدھاریں گے ریلیشن۔ سوڈان میں RSF کے قہر پر 20 ملکوں کا بیان، جواب دہی طے ہو۔ ترکی کا ملٹری پلین آذربائیجان بارڈر کے پاس کریش، سرچ آپریشن جاری۔ روس نے کیا دعویٰ، یوکرین برٹین مل کر MiG-31 چرانے کی کر رہے تھے سازش۔ اسلام آباد میں خودکش دھماکہ، 12 مرے، PM شہباز شریف نے انڈیا پر لگایا الزام۔ اور دلی لال قلعہ بلاسٹ میں 13 لوگوں کی موت، پردھان منتری مودی نے بتایا سازش، زہریلی میڈیا نے پھر مسلمانوں پر ٹھوکا الزام۔ یہ تھیں کچھ ہیڈ لائنز، ان کے علاوہ بھی ہیں کئی اہم خبریں۔ آزاد بول انڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے، میں ہوں عادل خان آزاد اور یہ ہے اسپیشل پرائم ٹائم شو دنیا بھر کی خبریں۔ شروع کرتے ہیں تفصیل سے خبروں کا یہ سلسلہ۔ ویسٹ بینک میں حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ قبضائے ہوئے خلیل شہر یعنی کہ ہیبرون میں آج پھر حالات بھڑک اٹھے۔ اسرائیلی ممبر آف پارلیمنٹ تزوی سکوٹ نے آج مسلمانوں کی نماز کے دوران ابراہیمی مسجد میں جبراً گھسپیٹ کی۔ غصے کی بات یہ ہے کہ وہ جوتے پہنے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہوا اور وہاں آ کر ایک یہودی دعا پڑھنے لگا۔ ساتھ ہی اس نے مانگ کی کہ یہودی لوگوں کو اس پاک مسجد میں بنا کسی روک ٹوک کے انٹری کی اجازت دی جائے۔ دوستو، یہ وہی ابراہیمی مسجد ہے جسے مسلمان خلیل کی مسجد کہتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ یہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہے۔ اسرائیل نے سالوں سے اس جگہ پر سخت کنٹرول رکھا ہوا ہے اور ہر بار کسی اکسانے والی کارروائی کے بعد یہاں ٹینشنز پیدا ہو جاتی ہیں، ٹینشن بڑھ جاتی ہیں۔ آج کی یہ حرکت بھی اسی سلسلے کی ایک نئی کڑی ہے جسے فلسطینی لوگ مذہبی اکساوے کی کھلی کوشش بتا رہے ہیں۔ اسرائیل کی پارلیمنٹ یعنی نیسٹ میں آج نفرت کا ایک اور منظر دیکھا گیا، مٹھائیاں بٹی۔ الٹرا نیشنلسٹ منسٹر ایتمار بین گویر، جو پہلے سے ہی فلسطینی قیدیوں کی سزائے موت کی وکالت کرتا رہا ہے، اس نے آج اسرائیلی پارلیمنٹ میں مٹھائیاں بانٹیں کیونکہ فلسطینی قیدیوں کو پھانسی دینے والے بل کا پہلا ڈرافٹ پاس ہو گیا ہے۔ بین گویر نے مسکراتے ہوئے کہا، آج کا دن اسرائیل کی جیت کا دن ہے۔ یہ وہی بین گویر ہے دوستو جو کئی بار فلسطینیوں کو دشمن اور ٹیررسٹ نسل کہہ چکا ہے اور جس پر مسلمانوں کے خلاف نفرت بھڑکانے کے درجنوں الزامات ہیں۔ اس بل پر ابھی آخری ووٹنگ باقی ہے، لیکن بین گویر کی یہ حرکت یعنی خوشی میں مٹھائی بانٹنا کئی اسرائیلی اور یہودی گروپس تک کو شرمندہ کر رہی ہے۔ غزہ کا بٹوارہ ہونے جا رہا ہے۔ یقین نہ ہو تو اس خبر کو سن لیجیے اور وہ بھی دھیان سے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پلان پر اب کالے بادل چھا گئے ہیں اور کئی سورسز کا کہنا ہے کہ غزہ کا ڈی فیکٹو پارٹیشن یعنی بٹوارہ اب لگ بھگ طے نظر آ رہا ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق یہ بٹوارہ 2 حصوں میں ہوگا۔ ایک علاقہ جو اسرائیل کے کنٹرول میں رہے گا IDF کے، اور دوسرا علاقہ جہاں حماس کا اثر قائم رہے گا۔ یعنی یہ بات بھی صاف ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہی حماس بھی پاور میں رہے گا، جبکہ اسرائیل سے منظور نہیں کرتا تھا۔ اس حساب سے تو یہ صرف غزہ کا نہیں بلکہ پورے فلسطین کا ایک اور بٹوارہ ہے۔ پہلے ہی ویسٹ بینک اور غزہ کو کاٹ رکھا ہے بیچ سے۔ 6 یورپی افسروں نے بتایا کہ ٹرمپ کا سیز فائر کے بعد والا پیس فیز، امن والا مرحلہ پوری طرح سے ٹھپ پڑ گیا ہے اور اب جو ریکنسٹرکشن یعنی تعمیر کا کام ہونا تھا وہ صرف اسرائیل کے کنٹرول والے حصے تک سمٹتا نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب بالکل صاف ہے کہ غزہ سالوں تک 2 حصوں میں بٹا رہ سکتا ہے، جہاں ایک طرف اسرائیلی فوج کا کنٹرول ہوگا اور دوسری طرف حماس کا علاقہ۔ یعنی یہ ایک ایسی انڈکلیئرڈ سرحد ہوگی جو نئے مڈل ایسٹ کے نقشے کی طرح ابھر رہی ہے۔ ٹرمپ پلان کے پہلے فیز کے تحت 10 اکتوبر سے جو سمجھوتا لاگو ہوا، اس میں اسرائیلی فوج اب غزہ کے 53% حصے پر قبضہ رکھتی ہے۔ صرف 47% غزہ کے 22 لاکھ مسلمانوں کے یا فلسطینیوں کے پاس ہے۔ اس میں جو اسرائیلی فوج کے پاس 53% حصے میں جو اس کی زمین ہے غزہ کی، اس میں زیادہ تر کھیتی کی زمین ہے۔
सरसब्ज। रफा यानी साउथ गजा का सरहदी इलाका भी है इसमें, गजा सिटी के कुछ हिस्से भी हैं और दूसरे शहरी इलाके भी शामिल हैं। यानी गजा के सारे क्रीम एरिया, सारे जरखेज एरिया इसराइल के कब्जे में है। यूरोपीय सोर्सेज का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो गजा आने वाले कई सालों तक एक विभाजित सरजमीन, एक डिवाइडेड सरजमीन बनकर रह जाएगा। दोस्तों, ट्रंप का अमन प्लान अब नक्शे की नई लाइन बन चुका है और गजा जो कभी एक था अब दो हकीकत में बंटता जा रहा है। इस दो हकीकतों में एक तरफ इसराइल है और दूसरी तरफ हमास। आज यासिर अराफात की बरसी है, यानी वो शख्स जिसने फ़लस्तीन को आवाज़ दी। आज से ठीक 21 साल पहले 11 नवंबर 2011 को फ़लस्तीन के लीडर यासिर अराफात इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। अराफात की मौत फ्रांस के पेरिस में एक हॉस्पिटल में हुई थी, जहां उन्हें तब ले जाया गया जब इस्राएली फ़ौज ने रमल्ला में उनके प्रेसिडेंशियल हेडक्वार्टर्स को घेर लिया था और वो कई हफ्तों तक बीमार और मुहासरे की हालत में रहे थे। अराफात जो फ़लस्तीन की आज़ादी की आवाज़ बने, उनकी मौत आज भी एक सवालिया निशान बनी हुई है। कई लोग मानते हैं कि उनकी मौत जहर देने की वजह से हुई, हालांकि आज तक कोई तय सबूत सामने नहीं आ पाया। 21 साल बाद भी अराफात की याद फ़लस्तीन की गली कूचों में एक ऐसे लीडर के तौर पर जिंदा है जिसने दुनिया को याद दिलाया कि कब्ज़े के साए में भी आज़ादी की तलब कभी नहीं मरती, आज़ादी की सदा कभी नहीं बुझती। खबर यमन से, जहां के अंसरुल्लाह मूवमेंट यानी कि हूथीस ने इसराइल पर हमला ना करने का ऐलान कर दिया है। यमन के हूथीस ने इशारा दिया है कि उन्होंने इसराइल और रेड सी में जहाज़ों पर होने वाले हमले फिलहाल रोक दिए हैं। ये बयान उस वक्त आया जब गजा में सीज़ फायर बड़ी मुश्किल से बरकरार है। हूथीस की तरफ से हमास की अल-क़स्साम ब्रिगेड को एक ख़त भेजा गया जिसमें उन्होंने कहा कि हम हालात पर करीबी नज़र रखे हुए हैं। अगर इसराइल ने गजा पर फिर हमला शुरू किया तो हम भी अपनी फ़ौजी कार्रवाई दोबारा शुरू करेंगे और फिर से रेड सी और अरेबियन सी में इसराइली जहाज़ों पर पाबंदी लगा देंगे। यानी हूथीस का कहना है कि हम हमले तो ख़त्म कर रहे हैं, अभी जो वार्निंग दी थी फिर से शुरू करने की उस पर भी काम नहीं करेंगे, लेकिन गजा में सीज़ फायर कायम रहा तभी तक हम खामोश बैठेंगे। हालांकि हूथीस ने अब तक ऑफिशियल तौर पर यह ऐलान नहीं किया कि उन्होंने अपनी रेड सी कैंपेन पूरी तरह से बंद की है या नहीं की है। ईरान बड़ी तैयारी कर रहा है। इसराइल से दोबारा हमला होने के आसार के बीच ईरान ने एक सख्त ऐलान किया है। ईरान की फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मुसावी ने कहा है कि अगर अब दुश्मन ने कोई जंग छेड़ी तो उसका जवाब पहले से कहीं ज्यादा सख्त और तबाहकुन होगा। उन्होंने कहा कि ईरान की मिलिट्री डॉक्ट्रिन अब भी डिफेंसिव है, लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाब वो नहीं होगा जो पहले देखा गया, उससे कहीं तगड़ा होगा। जनरल मुसावी ने 12 दिन की उस जंग का भी जिक्र किया जो अमेरिका और ज़ायनी रजीम ने जून में ईरान पर थोपी थी। उन्होंने कहा कि जंग भले रुक गई हो मगर ख़त्म नहीं हुई। इस डायलॉग से आप समझ लीजिए, जंग भले रुक गई हो लेकिन ख़त्म नहीं हुई, यानी जंग जारी है। ईरानी आर्मी के चीफ का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब कहा जा रहा है कि इसराइल और अमेरिका दोनों फिर से ईरान के खिलाफ हमले के नेक्स्ट राउंड की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए ये बयान काफ़ी अहम माना जा रहा है। याद कीजिएगा तो ऐसे ही कुछ बयान जून में ईरान पर हमला होने से पहले भी ईरान की तरफ से आ रहे थे। कुछ समझ रहे हैं? वॉशिंगटन में अहमद अल-शरा और ट्रंप की ऐतिहासिक मुलाकात के बाद दुनिया भर में ये सवाल उठ रहा है कि क्या अब सीरिया भी अब्राहम अकॉर्ड्स यानी इसराइल से रिश्ते बहाल करने वाले अरब मुल्कों की कतार में शामिल होने जा रहा है। मगर फॉक्स न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में सीरिया के प्रेसिडेंट अहमद अल-शरा ने ये उम्मीदें ठंडी कर दी, इसराइल के तमाम अरमानों को पलीता लगा दिया। अहमद अल-शरा ने कहा कि हम इस वक्त इसराइल के साथ किसी सीधी बातचीत में नहीं जा रहे, कोई डायरेक्ट बातचीत नहीं चल रही, कोई दोस्ती वोस्ती ताल्लुकात सुधारने का कोई मिशन नहीं। शायद अमेरिकी हुकूमत और ख़ुद प्रेसिडेंट ट्रंप इस तरह की बातचीत के लिए रास्ता बना सकें, ये शरा ने कहा, लेकिन उन्होंने कहा ये अभी नहीं होने जा रहा। ट्रंप भी ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे। यानी सीरिया फिलहाल इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन टॉक्स यानी ताल्लुकात ठीक करने से दूर रहना चाहता है। इससे पहले व्हाइट हाउस में ट्रंप से
ट्रंप ने मुलाकात के बाद बयान दिया था, जब अलशरा से उनकी मुलाकात हुई ट्रंप की, तो उसके बाद बयान दिया कि सीरिया बहुत जल्द एक कामयाब मुल्क बनेगा और उन्होंने अलशरा को अमन का बड़ा हिमायती बताया था। इन्हीं पर मिलियंस ऑफ मिलियन डॉलर का इनाम भी अमेरिका ने ही रखा था। लेकिन अलशरा का लहजा कुछ और ही कहानी कह रहा था। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बरक्स उनके बयान में अमन की बात जरूर है, मगर इसराइल से हाथ मिलाने का वक्त अभी नहीं आया। खबर सूडान की। दुनिया के 20 से ज्यादा ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स और सीनियर अफसरों ने सूडान में जारी इंसानी तबाही और वॉर क्राइम्स पर एक जॉइंट बयान जारी किया है। इस बयान में कहा गया है कि हम अल-फाशर शहर पर आरएसएफ के कब्जे के बाद और उस दौरान आम लोगों पर होने वाले जुल्म से गहराई तक परेशान हैं। इन मुल्कों ने आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस पर नस्ली कत्लेआम, औरतों पर जबरन तशद्दुद, भूख को हथियार बनाने और मदद का काफिला रोकने जैसे जंगली तरीके अपनाने का इल्ज़ाम लगाया है। बयान में कहा गया कि अगर ये रिपोर्ट साबित हो जाती है तो ये कारनामे वॉर क्राइम्स और इंसानियत के खिलाफ जुर्म माने जाएंगे। ये बयान उस वक्त आया है जब नॉर्थ दारफुर और कोर्दोफान इलाकों में लड़ाई तेज हो गई है और अल-फाशर पूरी तरह आरएसएफ के कब्जे में जा चुका है, जहां हजारों लोग मारे गए हैं और लाखों घरों से बेघर हो गए हैं। दुनिया भर के जिम्मेदार मुल्क अब ये मांग कर रहे हैं कि जवाबदेही तय हो और सूडान के गुनाहगारों को अदालत में लाया जाए। आज तुर्की का एक मिलिट्री प्लेन क्रैश हो गया। तुर्की की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि एक C-130 मिलिट्री कार्गो प्लेन मंगल को अजरबैजान और जॉर्जिया की सरहद के पास हादसे का शिकार हो गया। बयान के मुताबिक ये जहाज अजरबैजान से उड़ान भरकर तुर्की लौट रहा था, लेकिन रास्ते में क्रैश हो गया। अब तक ये साफ नहीं हुआ कि प्लेन में कितने क्रू मेंबर सवार थे। तुर्की ने कहा कि अजरबैजानी और जॉर्जियन हुक्काम के साथ मिलकर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। रूस ने एक बड़ा दावा किया है कि यूक्रेन और ब्रिटेन ने उसके MiG-31 चुराने की साजिश रची थी। दोस्तों, रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस FSB ने मंगल को दावा किया कि उसने यूक्रेन और ब्रिटेन की मिलीजुली कोशिश को नाकाम कर दिया, जिसमें उसके MiG-31 फाइटर जेट जंगी जहाज चुराने की साजिश रची गई थी। FSB का कहना है कि यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्रिटेन की मदद से एक MiG-31 जेट को हड़पने की कोशिश कर रही थी, वो भी ऐसा जेट जो किंजल एयर लॉन्च्ड मिसाइलों से लैस था। रशिया की एजेंसी ने इल्जाम लगाया कि यूक्रेन ने रशियन पायलट्स को $3 मिलियन देने का लालच दिया था ताकि वो जंगी जहाज उड़ाकर रोमानिया के नाटो एयरबेस की तरफ ले जाएं, जहां उसे गिरा दिया जाएगा और फिर रूस पर सरहद तोड़ने का या एयर स्पेस में मुदाखलत करने का इल्ज़ाम ठोका जाएगा। FSB के मुताबिक हमारे कदमों ने यूक्रेनी और ब्रिटिश इंटेलिजेंस की बड़े पैमाने की उकसावे की कोशिश को नाकाम कर दिया है। दोस्तों, फिलहाल इस पूरे मामले पर यूक्रेन और ब्रिटेन की तरफ से अब तक कोई बयान, कोई सफाई नहीं आई है। यूक्रेन की फौज ने दावा किया है कि उसने मंगल की शहर में रूस की सारातोव ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया, जिसके बाद तेज धमाके और बड़ी आग देखी गई। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने टेलीग्राम पर बयान जारी करके बताया कि इस हमले में रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में मौजूद सी ऑयल टर्मिनल और डोनेट्स्क के एक गोदाम को भी निशाना बनाया गया। रूस की तरफ से अभी तक किसी ऑफिशियल जवाब या मारे गए लोगों की जानकारी नहीं दी गई है, मगर इलाके के वीडियो में आग की लपटें और धुएं के गुबार साफ देखे गए हैं। माहिरीन का कहना है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूक्रेन अब रूस की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधी चोट कर रहा है ताकि जंग के मैदान में रूस की तेल और सप्लाई लाइनों को कमजोर किया जा सके। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से खबर है, जहां की कैपिटल इस्लामाबाद में आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर हुए खुदकुश धमाके ने पूरे शहर को हिला दिया। इस धमाके में कम से कम 12 लोग मारे गए, 27 जख्मी हुए। यह हमला कई सालों बाद इस्लामाबाद में हुआ पहला बड़ा टेररिस्ट हमला है, जिसने लोगों में दहशत फैला दी। धमाके वाली जगह के आसपास कई सरकारी दफ्तर भी हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अपनी आदत के मुताबिक इस हमले के पीछे भी भारत का हाथ बता डाला है। इस बीच शहबाज शरीफ को यह सुनना चाहिए कि इस बीच तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP नाम के टेररिस्ट ग्रुप ने इस धमाके की जिम्मेदारी ली है। ये TTP आए दिन पाकिस्तान में हमले करता रहता है और पाकिस्तान की एयरफोर्स भी इनके ठिकानों पर बम गिराती रहती है और इसी वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान की भी टेंशन बढ़ गई। तो इंडिया कहाँ से आ गया?
पाकिस्तान टीवी के मुताबिक ज़्यादातर बनने वाले राहगीर या वो लोग थे जो सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचे थे, यानी बेगुनाह लोग। और बेगुनाह लोगों को मारकर दहशतगर्द सोचते हैं कि वो किसी जन्नत में जाएंगे। किसी का कातिल कभी कोई किसी जन्नत में नहीं जाता। बाय डिफ़ॉल्ट ये मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन बाय नेचर ये शैतान के मानने वाले हैं, शैतान के रास्ते पर चलते हैं, जो बेगुनाहों का खून बहाते हैं। वो जो भारत में बेगुनाहों का खून बहाते हैं वो भी शैतान की औलाद हैं, चाहे कोई हो। और जो पाकिस्तान या कहीं भी ऐसी दहशतगर्दी करते हैं वो भी शैतान की औलाद हैं। भले वो कहते हों ज़ुबान से कि अल्लाह को मानते हैं, भले उन्हें कुछ कलमा या आयतें याद हों, भले वो अरबी बोलना जानते, लेकिन उनका इस्लाम से वास्ता नहीं। बात दिल्ली की, जहां लाल किला ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे साजिश बताया। अमित शाह ने कहा कार में धमाका हुआ, लेकिन भारत की मीडिया ने फिर से मुसलमानों पर उंगली उठाई और अपनी नफरती तहजीब दिखाई। भारत की राजधानी नई दिल्ली मंडे की रात दहल गई जब लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट में कम से कम 13 लोग मारे गए और 20 जख्मी हुए। ये धमाका कल रात 7 बजे के करीब हुआ था। पुलिस ने फौरन आतंकी कानून UAPA के तहत मामला दर्ज किया। होम मिनिस्टर अमित शाह ने बताया कि धमाका एक हुंडई i20 कार में हुआ जो ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी हुई थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये एक साजिश है। उन्होंने इसे टेररिस्ट अटैक नहीं कहा ये साजिश है और जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। होम मिनिस्टर ने भी इसे टेररिस्ट एक्ट नहीं कहा। सरकार इसकी जड़ तक जाएगी, ये PM ने कहा है। धमाके पर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या सरकार के पास कोई इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था? बार बार ऐसी सिक्योरिटी लापरवाही क्यों हो रही है? कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि देश को लग रहा है कि वो अब मजबूत हाथों में नहीं है, जैसा प्राइम मिनिस्टर मोदी क्लेम करते थे। उन्होंने मोदी के भूटान दौरे पर भी सवाल उठाया और कहा जब दिल्ली जल रही थी प्रधानमंत्री विदेश में क्यों थे? इधर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने ऐलान किया है कि लाल किला स्टेशन 12 नवंबर तक बंद रहेगा। धमाका मेट्रो स्टेशन के एंट्रेंस के पास ही हुआ था। हमारा मीडिया इस ब्लास्ट के बाद एक बार फिर अपनी घिनौनी और नस्ली हरकत पर उतर आया। एक मीडिया का एक बड़ा हिस्सा, सारे मीडिया ग्रुप्स नहीं, उस मीडिया ग्रुप ने मुसलमानों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, जबकि इस धमाके में मुसलमान भी मारे गए, जख्मी भी हुए। अल जजीरा तक ने लिखा धमाके की कुछ मिनटों बाद ही कई भारतीय पत्रकारों और चैनलों ने बिना किसी ऑफिशियल बयान के मुसलमानों पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। एक बड़े चैनल के कंसल्टिंग एडिटर ने, एक नफरती कंसल्टिंग एडिटर ने एक्स पर लिखा टेरर का भी एक मजहब होता है। एक दूसरी एंकर ने दावा किया कि धमाका जैन मंदिर के सामने हुआ, जबकि उसी इलाके में 1 दर्जन से ज्यादा मस्जिदें भी हैं जिनका जिक्र नहीं किया इस एंकर या किसी ने। ह्यूमन राइट्स और मीडिया वॉच ग्रुप्स ने इसे इस्लामोफोबिक नैरेटिव बताया है, जो पिछले कुछ सालों से मेन स्ट्रीम इंडियन मीडिया की आदत बन चुकी है। लेकिन यही बेशर्म मीडिया ना हुकूमत से सवाल कर रहा है, ना पूछ रहा है कि जिसके हाथ में मुल्क और दिल्ली की सिक्योरिटी है, क्या वो मिनिस्टर इस्तीफा देगा? क्या उसे इस्तीफा देना चाहिए? फिलहाल दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट और NIA इस मामले की जांच में जुटी है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।